Friends, I am Anup Chaudhary. Today I am going to discuss electric dipole, related derivations, concepts, and as well as conceptual problems. Before I start my today's lecture, I would like to inform you that a handwritten assignment I am going to provide in this way. Firstly, it will be available all of you publicly without any condition. No, I am not going to impose any monetary conditions, but after 4 or 5 assignment sheets, the assignment sheet will be only available to those who will subscribe my channel, share my channel, and as well as like my channel. These are not the conditions, but I would like to ascertain that the person who is joining my class through YouTube channel may get seriously some definite knowledge so that he may secure marks in the board examination and get success in entrance examination also. These assignment sheets, one assignment sheet for physics, I have posted today, and some assignment sheet regarding to physics I am going to upload tomorrow. Now start with electric dipole. What is an electric dipole? When I define it, then I will say electric dipole is an electrical arrangement in which two equal and opposite charges are kept at certain distances, comparably small distances. This is minus Q charge, this is plus Q charge. These are small charges and kept comparatively small distance denoted by 2a. Why this distance is denoted by 2a? Simply a logic is there that every distance you are going to measure from its center. Therefore, this charge distance from its center is a, then this charge distance from center is a, the total distance is 2a between the charges. Now, electric dipole moment. Electric dipole moment. It is defined as the product of magnitude of either charge and separation between them, and is denoted by P. Vector, it is a vector quantity. Vector P is given by charge magnitude 2a into separation between them 2a vector, or vector P is equal to 2 vector A Q. It is a vector quantity, therefore direction must be associated with it. The direction is taken from negative charge to positive charge, and its unit is कूलाम मीटर. आपको कूलाम मीटर में कूलाम पहले लिखना है, मीटर बाद में लिखना है. आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते. व्हाट आई मीन टू से, आप मीटर इंटू कूलाम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं देन इट विल बी रेड एज मिली कूलम. सो कूलाम मीटर you have to write. Clear? Now,
इसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों लेते हैं? भाई हमारे इंडिया में अगर हम रोटेशनल मोशन की स्टडी करें तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल फॉलो किया जाता है। जब हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करते हैं तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, जिसको मैं आगे इलेबोरेट करूंगा, लेकिन अभी यहां तक आपको इस बात को ध्यान रखना है। इस लेक्चर से हमारे पास, इसमें मैं कम ही लिखूंगा लेकिन जो लिखूंगा वो इतना विजिबल जरूर होगा कि आपको नजर आए। वन मोर थिंग, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स my video will be available on YouTube in compressed state. Means it is not going to take more than 400 megabyte memory for 1 hour lecture. Okay, this is electric dipole. Why electric dipole we are going to study? भाई हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में that it is a medium dependent force. मींस एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो कूलम्बियन फोर्स एक्सर्ट करता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? मीडियम की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती होगी। उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करते हैं। हमें पता है मीडियम बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड, थोड़ा केमिस्ट्री में, कोवैलेंट बॉन्ड से अगर ये बॉन्ड बना हो तो ऐसे पार्टिकल के बीच, ऐसे एलिमेंट्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है, तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ के एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसा आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। द सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर बट इन ए डिफरेंट मैनर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। Please, before that, write down a question. Write down a question. An electric dipole consists of charges plus minus 2 microcoulomb at separation 10 micrometer. Find electric dipole moment. T is equal to 2aq, that is सेपरेशन 2a की वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, 10 into 10 power minus 6. It is equal to 2a and this is equal to q. मैग्नीट्यूड क्या रखना है? 20 into 10 power minus 12 कूलम मीटर। Next, electric field. Please write down the heading. Electric field due to electric dipole. Electric dipole. Electric field due to electric dipole. Part 1. या इससे पहले लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट सेपरेशन 2a. At separation 2a means minus q and plus q at separation 2a, then its dipole moment will be P equal to 2aq. Now case 1. Case first. When point lies at the axis of the electric dipole or at end on position. One thing I would like to explain you, that please use this statement, that is end on position. Axis में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अभी इसके डेरिवेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है
ये प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर इसका ये है, डायपोल मोमेंट P है, डिस्टेंस 2a. लेट कैपिटल A be a point, capital A be a point at small r distance from the electric dipole. इसके सेंटर से मेजर करनी है. इस पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस r माइनस a हो जाएगी, जबकि नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस r प्लस a हो जाएगी. यहां से यहां तक r और प्लस a. नाउ लेट E1 and E2 be the electric fields due to positive and negative charges respectively. E1 जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो और E2 नेगेटिव चार्ज की वजह से. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही होती है. दैट्स व्हाई E2 की डायरेक्शन ये लिया. नाउ E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर. E2 is equal to KQ upon R plus A whole square. Therefore, net field, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है. यहां पे E1 न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, लेकिन डेनोमिनेटर E1 का कम है. इसका मतलब E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. Therefore, रिजल्टेंट फील्ड is equal to E1 minus E2 is equal to. अगर कभी भी आपको देखने में कठिनाई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे. KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर इजिकल टू KQ कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर इजिकल टू. और E is equal to KQ R माइनस A होल स्क्वायर इंटू R प्लस A. ये एलसीएम आ जाएगा, यहां पे R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर. नाउ KQ को हम ऐसे ही रहने दें. A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है. व्हाट आई वांट टू से यू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. Therefore, it comes out to be 4 into r into a, and this can be written as r square minus a square whole square is equal to k 2 into 2aq into r अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर E इक्वल टू. और E इक्वल टू K इंटू ये 2 ऐसे रह जाएगा. 2aq को P लिखा जा सकता है R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. इन वेक्टर फॉर्म. अब यहां पे देखें, क्योंकि E1 ज्यादा है E2 से, तो रिजल्टेंट फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी. क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म मींस डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. वेक्टर फॉर्म को लिखा जाता है वेक्टर E इक्वल टू K2 वेक्टर PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. Again, if R is very much larger than A,
then it can be written as r square minus a square equal to r square, or e equal to k into 2pr। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे केवल आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, आ जाएगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। भाई यहाँ आर की पावर 4 आ जाएगा, या आर से आर की पावर 4 आर क्यूब टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा। दिस इज फोर्थ। और अगर हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको भी लिख लें व्हेन द पॉइंट इज फॉर्मेटरी, और वेक्टर ई इक्वल टू के 2 वेक्टर p अपॉन आर क्यूब। देयरफॉर हम यहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। मींस अगर यहां पे फील्ड निकालना चाहे तो इस डायरेक्शन में होगी, और यहां पे तो हम देख ही चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है ये सभी एक्सियल पॉइंट हैं। इसके बीच में भी, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये लाइन आती है, एक्सिस आती है, इसी को तो एक्सिस कह रहे हैं ना हम। तो ये जो एक्सिस लाइन है, जैसे जो सेंटर है डायपोल का, या दोनों चार्जेस के बीच के जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे, वो सभी एक्सियल पॉइंट होंगे। उनके लिए ट्रू नहीं है, उनके लिए ट्रू है जो पॉइंट इस डायपोल से बाहर होंगे, इसीलिए एंड ऑन पोजीशन ज्यादा प्रॉपर है। अब देखते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या होता है डायपोल के। अगर हम यहां पे फील्ड निकालना चाहें जहां पे डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज की ऐसी फील्ड किधर आएगी, इधर। इस पॉजिटिव चार्ज की ऐसी फील्ड किधर आएगी, इधर ही। तो रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मींस व्हाटएवर वी आर सेइंग दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial position of an electric dipole is along the dipole moment of the electric dipole. It is only correct when point is outside the dipole. That is called end on position point. Clear? Now, यहां से अगर हम देखें तो हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। वो क्या है, हमने देखा ना k into 2p upon r cube, that is E is proportional to 1 upon r cube. Now, second point, case 2. When point lies on the equatorial axis of the dipole or broadside position, BROAD, broadside position, or equatorial axis, it is also said equatorial axis। ये मैं रब आउट कर दूंगा, लेकिन ये भी कहा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेटोरियल एक्सिस रब आउट कर दे रहा हूं। नाउ हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके सेंटर पे हम दिखाते हैं, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस लाइन, और यहां पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो ब्रॉड साइड पोजीशन भी लाइन कहलाती है। ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करते हैं कि यहां से इसे सेंटर से ये r डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस होगा a, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट। Similarly here, this distance is also equal to r square plus a square square root। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, E1 मान लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, इसको हम E2 मान लेते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अगर हम E1 और E2 निकालना चाहें तो E1 इक्वल टू आ जाएगा k क्यूब। k कांस्टेंट है, q ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम E2 निकालना चाहें वो भी मैग्नीट्यूड में इतना ही आ जाएगा, और डायरेक्शन हम पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये थीटा होगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी एंगल, ये दोनों ही जो ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे,
ये वाला एंगल बराबर होगा और ये दोनों एंगल बराबर अल्टरनेट एंगल की वजह से इसका कंपोनेंट इस ब्रॉड साइड एक्सिस की तरफ या इक्वेटोरियल एक्सिस की तरफ E1 साइन थीटा और इधर E1 कॉस थीटा, इधर E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। भाई देखो ये E1 E2 आपस से बराबर है, कॉस साइन थीटा वैसे ही बराबर है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 आपस में बराबर है तो इसको हम 2E1 cos थीटा भी लिख सकते हैं। भाई ये भी E1 ही लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज R, that is A, base is A upon R square plus A square power 1 by 2, 2AQP KP upon R square plus A square power 3 by 2. This is equation number 2 in case 2. Now in vector form, वेक्टर E इक्वल टू, देखिए यहां पे हमारे पास जो यहाँ पे KP, जो P है, P की डायरेक्शन तो ये है और रिलेटिव फील्ड की डायरेक्शन तो ये आ रही है, रिलेटिव फील्ड तो इधर आ रही है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे K वेक्टर P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3 by 2। If R is very larger than A, it means that R square plus A square is equal to R square। और E इक्वल टू KP, भाई A स्क्वायर गायब हो जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 3 by 2 यहां पे बचेगा, KP अपॉन R क्यूब। इन अगेन वेक्टर फॉर्म की हम बात करेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स वेक्टर P अपॉन R क्यूब। इज दिस क्लियर? सब कुछ विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, नाउ केस 3। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at a general point, at a general point, general point। जनरल पॉइंट का मीनिंग क्या है पहले उसे समझ लें। दिस इज माइनस Q चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज प्लस Q चार्ज and this is the dipole moment। Suppose this is the point A which is at small r distance, which is at small r distance from the dipole, and the line joining the point to the center of dipole is making angle theta with the dipole moment। कुछ चीजें हम यहाँ पे समझ लें, इस प्रॉब्लम को हम कर पाए उससे पहले हमने क्या देखा था, यहां पे एक कंडीशन हमारे पास एप्लीकेबल है, R इज वेरी वेरी मच लार्जर देन A बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। ये चीज यहां पे एप्लीकेबल। हमने क्या किया, यहां पे
हमने ये देखा था जब एक्सिस की बात आई थी, हमने पॉइंट यहीं पे लिया था ना, पॉइंट, इसके सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन करो तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे, ये दोनों, इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो अगर कहीं पर भी अगर जो लाइन पॉइंट को ज्वाइन करती है वो डायपोल मोमेंट के साथ 0 या 180 एंगल बनाती है, इन दैट केस 0 या 180 एंगल बनाते हैं, इन दैट केस वो डायपोल का एंड ऑन पोजिशन पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पे k इंटू 2p/r³ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसे ही इससे 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है वो ब्रॉड साइड पोजिशन पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³ होती है। यहां से हम क्या पहचानेंगे, अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट p है तो यहाँ हम p लेके चलेंगे, p1 से डिनोट करते थे, p1 लेके चलते हैं। ये p cos थीटा होता तो यहाँ पे p की हमें p cos थीटा और यहाँ पे p की है p cos थीटा। इस प्रकार से हम इसको वर्कआउट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या है, इस जो फैक्ट मैंने आपको बताया उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको हमने p cos थीटा कंपोनेंट इधर ले लिया और p sin थीटा कंपोनेंट इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक ये p sin थीटा, दूसरा p cos थीटा। p cos थीटा के लिए जो ये पॉइंट होगा वो ब्रॉड साइड पोजीशन वाला पॉइंट होगा। तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर मान ली E1 सेम डायरेक्शन में होगा ना, आगे सब कुछ भूल जाए, वेक्टर है ना, इसका इफेक्ट देख लें, इसका इफेक्ट देख लें, बाद में दोनों को वेक्टोरली कंबाइन कर दें। p sin थीटा की वजह से इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये पॉइंट, ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है p sin थीटा के साथ, तो ये ब्रॉड साइड पोजिशनल पॉइंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसको हमने E2 मान लिया। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने मान लिया, ये जाता है E और ये जो है अल्फा एंगल बनाता है E1 के साथ। तो यहां पे अगर हम E1 की हम बात करें तो E1 आ जाएगा k इंटू 2p। p कितना है E1 के लिए, E1 p cos थीटा डायपोल मोमेंट के लिए, तो 2p cos थीटा अपॉन r³ और E1 इक्वल टू k 2p cos थीटा बाई r³। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली E2 इक्वल टू k इंटू p, E2 जो फील्ड है वो p cos sin थीटा की वजह से है, k इंटू p sin थीटा अपॉन r³। अगर हम इसको वेक्टोरली ऐड करें देन नेट फील्ड E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। k2p अगली लाइन से देखते हैं, यहां पे नहीं, E इक्वल टू अंडर रूट k2p cos थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर। यहां पे अगर हम देखें k दोनों में कॉमन है, r³ कॉमन है, p कॉमन है, तो यहां से हमारे पास kp अपॉन r³ का होल स्क्वायर कॉमन आ जाता है। जो बाकी बचता है 2 cos थीटा यहां बचेगा होल स्क्वायर प्लस वहां पे sin थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। kp बाई r³ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि सब कुछ cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में रहे। और E इक्वल टू kp बाई r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा minus 1. This is the final formula for a general point. Now some question based upon electric dipole. Please write down the question.
an electric dipole be consisting of charges plus minus 2 nanocoulomb at separation of 10 angstrom. Find its electric dipole moment. Part B, electric field at a point on position at r is equal to 10 angstrom, कॉमा इसी में दूसरा पार्ट है r is equal to 10 micrometer. Part C, electric field at a point at 10 angstrom and 10 micrometer from it. Solution. क्वेश्चन को समझ लें और समझने के लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं. Q is equal to plus minus 2 nano coulomb 10 power minus 9 coulomb and 2A, separation between the charges is 10 angstrom, 10 into 10 power minus 10, that is 10 power minus 9 meter. Part A, what is the dipole moment? Dipole moment 2AQ is equal to 2A को हम लिखेंगे 10 power minus 9 into Q, 2 into 10 power minus 9 is equal to 2 into 10 power minus 18 coulomb meter. Part B, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. पार्ट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट दैट इज ब्रॉड साइड एनोन पोजीशन पे निकालना है. R is equal to 10 angstrom. R is equal to पहले पार्ट पे 10 angstrom. अरे भाई ये जो हमारे पास 10 पावर माइनस 9 मीटर आ जाता है, ये जो इनके बीच का सेपरेशन है उसके कंपेरेबल है, हमारे इसके से बराबर है, मतलब कंपेरेबल है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा हो भी नहीं सकता. इन दैट केस अगर हम लिखें यहाँ पे E is equal to फॉर्मूला था K इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2 होल स्क्वायर. सॉरी, K 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 P हमने निकाला था 2 इंटू 10 पावर माइनस 18 R is equal to 10 angstrom 10 power minus 9 upon R square 10 power minus 18 plus A square. A हमारे पास आ जाएगा 25 into 10 power minus 20. 2A is equal to 10, then A is equal to 5 angstrom. 5 angstrom is 5 into 10 power minus 10, उसका होल स्क्वायर करेंगे 25 into 10 power minus 20 आ जाएगा पावर होल स्क्वायर. अब इसको हम आगे वर्कआउट करें तो हमारे पास E is equal to आ जाएगा 9 to the 18 to the 36 into
10 पावर 9, 10 पावर -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 पावर -18 अपॉन 10 पावर -18 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 10 पावर -18 होल स्क्वायर, सॉरी इतना कॉमन लेंगे फिर स्क्वायर से ब्रैकेट से बाद में होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.25 होल स्क्वायर। इजिकल टू 36 इंटू 10 पावर 36, ये -18 एक बार कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू 10 पावर 18 आ जाएगा अपॉन 1.25 होल स्क्वायर। इसको अगर वर्कआउट करेंगे तो कितना आएगा, ट्राई करिए, मैं बताता हूं। इट कम्स आउट टू बी 23.04 इंटू 10 पावर 18 इसका टू 2.304 इंटू 10 पावर 19 न्यूटन पर कूलम। नाउ इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने R इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर लिया था। इन द सेकेंड पार्ट, एज R इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 पावर -5 मीटर, इट इज मच लार्जर देन 10 एंगस्ट्रॉम और 10 पावर -9 मीटर। Therefore, E is equal to K into 2P upon R cube. 9 into 10 power 9 2P हमने जो कैलकुलेट आउट किया था P की वैल्यू, तो P2A 10 पावर -9 2 into 10 पावर -18 अपॉन R क्यूब। R हमारे पास है 10 माइक्रोमीटर 10 पावर -5 होल स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी 9 4 जा 36 इंटू 10 पावर 10 9 19 18 1 इक्वल टू 360 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों ही क्वेश्चन में देख लें, जब वो डिस्टेंस कंपेरेबल थी डायपोल के सेपरेशन के अकॉर्डिंग, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा आ रही थी, और जब यहां पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम आ रही है। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्ट सी। सॉरी, वन प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे 10 की पावर -5 का होल क्यूब करना था, स्क्वायर कर दिया, होल क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आएगा, तो 10 की पावर 5 यहाँ पे ऐड आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 36 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। नाउ इन द पार्ट सी, जब हमारे पास ब्रॉड साइड पोजीशन है, पहला पार्ट बी पार्ट में एंड ऑन पोजीशन पे था, दूसरी में ब्रॉड साइड पोजीशन की बात हम कर रहे हैं। तो ब्रॉड साइड पोजीशन की हम जब बात करेंगे सी के सॉल्यूशन में, देन E इक्वल टू K इंटू पी अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 आया था। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, P हमने जो निकाला था वो आया था 2 इंटू 10 पावर -18 अपॉन R स्क्वायर, R जो डिस्टेंस है 10 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -18, इसका स्क्वायर करें A 25 इंटू 10 पावर -20 और 3/2, it comes out to be 18 into 10 power -18 plus 9 upon 10 power -18
पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.25 पावर 3/2 इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻27 इंटू 1.25 power 3/2. The answer is 12.9 into 10th power 18 Newton per coulomb. Now coming to next part, when R is very large, then we will say E is equal to Kp by R cube. 9 10⁻⁹ P 2 into 10⁻⁻18. This is 18 upon R cube. R 10 micrometer, 10⁻⁵ meter, 10⁻⁻15. Is equal to 18 into 10⁻⁶ Newton per coulomb. कुछ ऐसे ही रिजल्ट इसमें भी आ रहा है कि जब पॉइंट पास होता है कंपेरेबल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू व्हेन द डिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू द। इनका भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम जो कुछ स्टडी करेंगे इसी के बेसिस पे स्टडी कर रहे होंगे। नाउ प्लीज कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नोट करके एक बात आप नोट कर लेंगे कि एक चीज वहां बताना छूट गया मेरे से। जो हम जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं पॉइंट था, E1 इधर आ चुका था, E2 इधर आ चुका था, रिजल्टेंट इधर कहीं आ रहा था। इस एंगल को मैंने अल्फा माना था। सॉरी, ये चीज वहां पे डिस्कस करना ध्यान नहीं था। देन हम कहेंगे 10 अल्फा इक्वल टू E2 बाई E1। E2 और E1 की वैल्यू रखेंगे तो यहां पे K इंटू 2P साइन थीटा बाई R क्यूब E2 की वैल्यू आ जाएगी। E1 KP भाई सब आएगा, K इंटू 2P कॉस थीटा अपॉन R क्यूब, KP R क्यूब, KP R क्यूब 1/2 tan थीटा, tan अल्फा इक्वल टू। इस पे बेस्ड होके क्वेश्चन हम देखेंगे यहीं पे। इस पे बेस्ड होके क्वेश्चन देखेंगे। Find the angular position of the point so that the resultant electric field makes 90-degree angle to the direction of electric dipole moment of an electric dipole. मीन्स क्या है, जो ये वाला एंगल थीटा था, थीटा की वैल्यू क्या हो कि जो रिजल्टेंट फील्ड आ रही है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। देखें इसको कैसे वर्कआउट करते हैं। मेरे पास -q प्लस q, दिस इज डिस्टेंस r, दिस इज एंगल थीटा, दिस वाज E1, E2। ये जो रिजल्टेंट फील्ड है E, ये परपेंडिकुलर है इसके और इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये पता है। तो हम यहां कर कैसे सकते हैं, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन वी कैन से थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री।
Therefore, theta is equal to 90 minus alpha. This can be written. Any problem? No. Tan theta is equal to tan 90 minus alpha is equal to cot alpha. The first thing. As हमें पता है जो tan alpha है वो 1/2 tan थीटा के बराबर है. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. tan अल्फा को हम लिख सकते हैं और cot अल्फा इज टू tan थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे तो cot थीटा हो जाएगा. और tan स्क्वायर थीटा इसको हम क्या करेंगे 1/tan थीटा लिख देंगे. cot थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है cot थीटा, इसको हम 1/tan थीटा लिख देंगे. उधर जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा ना. Therefore tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस √2. Clear? Now, remember one thing. Assignment sheet I will provide in two ways. One way I have provided, and second way in the video, lecture video itself. There are two ways. Now, meeting you the next time in the next video. Till then, have a nice day and good luck for you for your study.